بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز میں مجھے کہتے ہیں جی زبیر ساجد ڈھیلو۔ ناظرین، بجٹ کی آمد ہے اور عام آدمی جو ہے وہ اس امید کے ساتھ ہے کہ مہنگائی کا زور ٹوٹے گا، عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ حکومتی دعوے بھی یہی ہیں کہ عام آدمی کو اس بجٹ میں بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، لیکن اصل حقائق کیا ہیں؟ عام آدمی کس طریقے سے سوچ رہا ہے، تاجر برادری کیسے سوچ رہی ہے اور حکومتی نمائندے کیا دعوے کرتے ہیں، آج کے پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے عوام کے پاس جائیں گے، عوام کی زبانی سننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کو کیا امیدیں ہیں، کیا گلے شکوے ہیں گزشتہ بجٹ کے اور آنے والے بجٹ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے تاجر رہنماؤں کے پاس اور اس کے بعد کسی تحریک انصاف کے یا حکومتی عہدیدار سے بات کریں گے اور بجٹ جو آ رہا ہے اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ چلیے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں پرائیویٹ۔ بجٹ آ رہا ہے، کیا امیدیں ہیں؟ بجٹ آ رہا ہے، امیدیں اچھی ہیں، خان صاحب بہتر ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور جو عام آدمی ان کو ڈیفینیٹلی ریلیف ملنا چاہیے۔ لیبر طبقے کو سب سے زیادہ ریلیف ملنا چاہیے سر۔ گزشتہ بجٹ بھی حکومت نے پیش کیے تھے، سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے؟ جی بالکل مطمئن ہے۔ کوئی مہنگائی میں اضافہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سر وہ اصل میں مہنگائی کا پراپر سسٹم جو مافیا بیٹھا ہے نا وہ مہنگائی کرتا ہے۔ اچھا، خان صاحب یہی کہتے ہیں مافیا ہے، تو مافیا کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی حکومت نے کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ادارے ہیں نا پچھلے 70 سال سے ادارے ابھی تک سٹیبل نہیں ہیں، وہ کرپشن میں ٹوٹلی انوالو ہیں۔ کرپشن ختم نہیں ہو رہی؟ کرپشن بالکل 90 دنوں میں ختم ہونی تھی، یاد ہے آپ کو؟ سر وہ دیکھو پلان ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جب وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے ہر چیز۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد مہنگائی ٹوٹ جائے گی؟ انشاءاللہ تعالی امید ہے۔ ہاں، سسٹم بہتر ہونے کے خود بخود آپ کی مہنگائی کم ہو جائے گی۔ اللہ کرے جی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں انشاءاللہ مہنگائی جو ہے وہ ٹوٹنی چاہیے، کیونکہ بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ سے عوام کی جو ہے امیدیں وابستہ ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بجٹ آ رہا ہے، کیا امیدیں ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بجٹ تو جون سا ہر سال آتا ہے، اچھا، بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جون سے چور، ڈاکو، لٹیرے، مافیا خور جون سے مال ذخیرہ دوسی کرتے ہیں جی، دیکھیں نا، گورنمنٹ نے کن کا ریٹ نکالا 1800 روپیہ، گندم کا ریٹ 1800 نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، جون سے یہ مافیا ہے، یہ 2000 روپے بیچ رہے ہیں، جس کو پراپرٹی مل رہا ہے وہ 2100 بیچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے گورنمنٹ سے ان کو چاہیے کنٹرول کرے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ جون سا مافیا نے اس کے اوپر، یہ عمران خان اکیلے نے کنٹرول نہیں کرنا، کنٹرول تو انہوں نے بھی کرنا جون سا نیچے قوم کام کرتی ہے، ہر آدمی کی کنٹریبیوشن، ہر آدمی کی کنٹریبیوشن ہے۔ عمران خان کا کام ہے صرف ایک ریٹ نکال دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عمران خان اس چیز کا کنٹرول نہیں کرنا۔ حکومت کی ریٹ ہوتی ہے نا، ریٹ ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ آٹا ہو گیا مہنگا، ہو گیا، ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، گورنمنٹ نے ریٹ نکالا بھی 1050 روپے کا تھوڑا بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر 1100 روپے کا بک رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے کنٹرول کرنے نہیں، میں؟ حکومت تو کامیاب ہے، لیکن یہ جو ان سے مافیا ہے نا یہ کامیاب سر ہے۔ مافیا کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ لیکن نا خان صاحب نے میں کہہ نے اور آپ نے تو نہیں کرنا۔ خان صاحب نے کہہ رہے تھے نا کرنا۔ اچھا، آپ خان صاحب سے اتنے امپریس کیوں ہیں؟ کون سی بات اچھی لگتی ہے آپ یہ کو خان دیکھو صاحب سے؟ ایک منٹ، خان صاحب نے یہ جتنے لٹیرے ان کو پکڑا نہیں ہے، پہلے جتنی ثابت ابھی ریکوری نہیں ہوئی، کوئی ثابت نہیں ہو رہا، کیس عدالتوں میں لگے وہ تو ہوئے ہیں۔ چل رہے ہیں، کیس تو چلتے رہتے ہیں۔ یہ تو پاکستان کا قانون ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کر لی نا اس نے، 6 مہینے کے بعد وہ چھوٹ جاتا ہے، بالکل پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں سائیکل والا پکڑا جاتا ہے، امیر نہیں پکڑا جاتا۔ ہاں جی، بات اس بات کی یہ چور ڈاکو پکڑے جائے، مافیا پکڑا جائے، ان کا منہ کالا کیا جائے۔ چلیں، آپ کی یہ مشورہ بڑا اچھا حکومت کے لیے، لیکن آپ بجٹ کے اوپر آ جائیں۔ دال، چینی، آٹا، آپ سمجھتے ہیں بجٹ میں بڑا ریلیف پنجاب حکومت کا دعویٰ بڑا ریلیف مل رہا ہے؟ ایک منٹ دیکھیں، جو ٹوئلٹی اسٹور کھلے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کم ریٹ پہ چیزیں بک رہی ہیں، لیکن شارٹ ہے، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی۔ شارٹ اس لیے میں کیا ہوتا، میں نے 1 کلو کی میری بتا دینا تو میں 5 کلو لے آیا ہوں،
चीनी मेरे घर की 3 किलो की एवरेज ठीक है। है, मैं 10 किलो ले आया हूँ। ठीक है। मैं उतनी देर तक नहीं सही हो सकता जिनके पीछे न दे। यानी आप और मैं गलत हैं। हाँ जी, अच्छा, अब बजट में हमें अच्छा खुशखबरी मिल रही है, आपको उम्मीद है? देखिए जी, मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी। इंशाल्लाह जी, मिलनी चाहिए, हम भी हाँ जी, यही चाहते हाँ हैं। जी। लेकिन बात ऑपोजिशन इस बात की, जो सा आदमी खरीदने जाता है ना चीज, जी जी वो इस बात पे नहीं सोचता मेरे पीछे जो सा खड़ा उसने भी लेनी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही खूबसूरत बात किया जी कि सबका सोचना चाहिए सब। जी आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, आ जाए आ कह रहे जाए। हो ना, महंगाई होती है, जो ये मिडिल मैन बंदा है ना, वो सबसे ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अगर 2 रुपए लगती है ना, तो वो जब रिटेलर तक पहुंचती है ना, वो 25 रुपए तक जाती है। ठीक है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस ऑफ यू। ठीक जब है। तक मिडिल मैन को आप कवर नहीं करोगे ना, सही नहीं होगा। इदारे जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, सिस्टम नहीं ठीक होना। अदारों का लेकिन- बजट से क्या ताल्लुक है? बजट सर- तो हुकूमत ने बनाना है, सर, बजट हुकूमत ने बनाना है, डेफिनेटली बनाना है। उसमें रिलीफ देना चाहिए उसमें आवाम को। relief definitely- सब्सिडी मिलेगी आवाम को। सब्सिडी इंशाल्लाह ताला मिलेगी, चले। वो देंगे। हमें उम्मीद है हर चीज़ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी बस। मच, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि अदारे बेहतर होने चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि अवाम का हक है कि अवाम को सब्सिडी दी जाए। जब तक बजट में अवाम को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, यकीनन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी उन्होंने बात की कि महंगाई जो है वो माफिया कर रहा है। अगर माफिया तो कर रहा है, लेकिन माफिया को कंट्रोल तो हुकूमत ने करना है, हुकूमत का काम है। मैंने या आपने या आम आदमी का ये काम नहीं है माफिया को कंट्रोल करना, ना ही हमारे बस की बात है ये। और साहब है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है आपकी? गर्मी बड़ी है बहुत है। हैं? मास्क इसीलिए नहीं पहना हुआ? हाँ जी, यही वजह है। अच्छा, इधर आ जाओ जरा, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी जरूरी बात, जो आप हमें मशवरा देंगे। बजट आ रहा है, आपको पता है? जी अच्छा, अगले हफ्ते आ रहा बजट, हाँ जी। तो क्या उम्मीदें हैं? जब बजट का नाम लेते हैं ज़हन में क्या आता है? जेन में ये आता है कि महंगाई का तूफान एक और बर्पा हो जाएगा। महंगाई का तूफान बर्पा होने वाला है? हाँ जी। अच्छा, वो मज़ीद कैसे तो और बताएं बढ़ जरा। जाएगा। वो ये है कि आगे थोड़ी महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है। अब और इसने ने और करना, बजट आएगा, खर्चा ही है आखिर। खर्चा बढ़ाना है, एक खर्च, बजट का मतलब खर्चा है। खर्चा बढ़ाना है तो खर्चा हमारे से ही निकलना है। अच्छा। आवाम से ही निकलेगा। ठीक इन्होंने है, तो आपको कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है? बिल्कुल कोई नहीं है। इन्हें क्यों नहीं है उम्मीद? हुकूमत तो दावा कर रही है बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। इसने बेड़ा गर्क कर दिया है और मजीद भी कर रहा है। अब पता नहीं और मजीद कितना करेगा। सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं बजट से बहुत नुकसान होने जा रहे हैं। बजट से नुकसान नहीं होना। ये सुन लें सर, ये जितनी क्या कह रहे देर हैं? तक एक आदमी पीछे का नहीं ना सोचेगा, ये पाकिस्तान की हुकूमत में ये सब हुकूमतें यही कहती है ना। ये कह रहे हैं कि बजट से रिलीफ मिलेगा। ये भी आम आदमी है, आप भी आम आदमी है। ये भाई ये लगते हैं कि पीटीआई वाले हैं। पीटीआई वाले इधर है ना, इनसे पूछ लेते हैं, आप पीटीआई वाले हैं? ये हम सब वाले मुस्लिम लीग वाले पीटीआई में जो सी हुकूमत आती सब हर हुकूमत को वोट ये डालते ठीक हैं। कह रहे हैं, गलत कह रहे हाँ हैं? जी, ये भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूँ। अच्छा, कहने की बात नहीं है इस बात पे। मैंने आपको एक बात बताई है, ठीक है। ये सस्ते बाजार खुले, इसमें चीनी मिलती थी, आटा मिलता था, 1 मिनट ठहर जाओ, मिलता था ना। मेरी एवरेज है 3 किलो की, तो मैं 10 किलो का सोच के बैठा हूँ। अब देखिए सस्ता बाजार, थोड़े आटे मेरी के बात सुनिए, ले अभी लीजिए। सस्ते बाजार की बात कर रहे हैं। सस्ता बाजार ये 3 किलोमीटर दूर हो, पहले हम 3 किलोमीटर जाके वहाँ से लाइनों पे लगे और फिर लेकर आए। ये सस्ता बाजार ही चाहिए, हमें चाहिए आम, हर बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए, चीजें सस्ती करें, हर जगह आम मिले हमें। और चीज तो नायाब हुई पड़ी है, आप हमें क्या क्या करें? मुतालबा करते हैं हुकूमत से? बजट में क्या होना चाहिए बता दें? मुतालबा ये कि हर चीज को सस्ता करें, रेट कम करें, ताकि हर चीनी, बंदे- दालें, आटा, आसमानों को छू रही हैं। ये सब चीजें आसमानों को छू रही हैं। इसको नीचे लाएं और अल्लाह को हाजिर नाजर होकर रेट कम करें। रेट ये हमें कोई नहीं रिलीफ लाइनों में लग के 3 किलोमीटर दूर जाके लाइनों में लगकर और एक छोटे से बाजारी में जाकर हम चीजें आपने लें। पीटीआई को वोट दिया था, बिल्कुल दिया था। इमरान खान साहब को वोट दिया था? हाँ जी, दिया था। तो आप खुश नहीं है खान साहब से? आप इसका अल्लाह ऐसा बेड़ा गर्क करे जैसे इसने लोगों को पीस तो दिया। इतना क्यों आप उनको बददुआएं दे रहे हैं? हमारे वजीर आज़म है वो। वजीर आजम है तो इसका ये काम नहीं है वजीर आजम की। अच्छा, हाँ जी, इसमें भाई ने ये नून लीग के हैं, इन्होंने एक बात की है, बड़ी अच्छी की है कि महंगाई हो रही है, हर चीज वो है। कह रहे हैं मैं पीटीआई को वोट दिया, आप कह रहे हैं नून लीजिए। दिया था, शेर को शेर को दिया। नून लीग उसका था। इनसे पूछ लेते हैं, इनसे वो एक सेकंड भाईजान, बजट आ रहा है अगले हफ्ते, क्या उम्मीद है? बजट में कुछ बड़ा होने जा रहा है और रिलीफ मिल रहा है? सर होने ये जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला अवाम का और बेड़ा गर्क होगा। अच्छा। जैसे हाँ जी, कैसे? जैसे अब मुझे हुआ बताएं, पड़ा ना, समझाएं जरा, इधर ये आ देखे जाओ, ना कि ये आगे आ अभी जाओ। मैंने ये 20 रुपए की बर्फ ली है, ठीक है, ठीक है, 20 रुपए के उसने इतनी सी बर्फ दी है और ये फिर 10 रुपए का ये छोटा सा टोटा दी है। अच्छा। अब गरीब बंदा और क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। तो सब्जी भी सस्ती सब्जी मिली हाँ होगी? जी, ये 40 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए किलो थे, अब ये 60 रुपए किलो मिले हैं मुझे घिया शरीफ। अब बंदा ये खाए, बच्चों को क्या करे? जब बजट का मैंने नाम अभी ले- 7 साल की मेरी बेटी हो गई है, अच्छा। मैंने अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं करवाया। खाना खाएं, उन्हें खाना खिलाऊं या मैं अब क्या करूं? स्कूल में दाखिल करवाऊं, स्कूल की फीसें भरें, क्या करें, कहाँ पे जाएं? कभी किसी को इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट है कि ये देखें,
मेहरबानी करें और जाएं। मेरी बात सुने, मेरी बात, इधर बात सुने ना। आप कभी किसी हुकूमत ने अच्छा बजट दिया कभी? पता क्या, कम से कम ये हाल नहीं थे। नवाज शरीफ बिल्कुल, आपने वगैरह के- बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। आप इनसे ये पूछें कि कंपैरिजन करें कि कंपैरिजन क्या करें, कंपैरिजन ये देखें कि मेरी बात आपने इन्होंने ये बात की, आम आदमी नो डाउट बिल्कुल एक्सेप्ट है, और चला गया, और गहराई में चला गया। वजूहात देखो, जब आप इतना कर्जा लोगे, आपका रेवेन्यू 60% जब आपका उसमें जाता है, क्या नाम है, कर्जों में कर्जों की जाता है, अदायगी में। तो पीछे क्या रह जाता है? आप 40% में क्या? चले एक आवाज़ सेकंड, कर सकते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, साइड में आ जाए, रोड नहीं बंद करना हमने। मुझे एक बता दें, जब बजट का नाम जहन में आता है कि बजट हुकूमत दे रही है, तो जहन में क्या क्या आता है? जहन में ये आता है कि इस दफा देखें कि जी बजट में ये चीज महंगी होगी। ये जब से ये हुकूमत आई है, सस्ती का तो सोच ही नहीं सकता है ना। जब से ये हुकूमत बैठे हुए हैं, सस्ती का नहीं हम सोच सकते हैं किसी चीज को। ये सोच रहे हैं कि अब कौन कौन सा पहाड़ किस किस चीज पे डलेगा ठीक है। महंगाई में। लेकिन अब एक बात याद रखें कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी कहा दिया है कि आम आदमी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है बजट में। आप बात नहीं मानते हमारे वज़ीर आला को? हमने तो वो देखा है कि अभी देखें कि शुरू से जब से मैंने होश संभाली, हमें पता, हमें यही नहीं पता कि हमारे वजीर आला साहब कौन से इलाके से बिलोंग रखते हैं, अच्छा, कौन से शहर से हैं, और उनकी यानी कि हमने कभी वो स्पीच उन्होंने करनी है सिर्फ देख के, ठीक है। जो उन्हें लिखा दे दिया, उन्होंने उतनी सी स्पीच कर देनी है और वो बस दैट्स ऑल, कि उन्होंने जो उन्हें ऑर्डर मिला है उन्होंने उसके अब मुताबिक करना मुतालबा है। करते हैं, मुतालबा क्या क्या होना मुतालबा चाहिए? हमारा यही है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वापस लाया जाए। नहीं ला सकते हैं तो उन जैसे बन जाए, अच्छा, उन जैसे बन जाए। उन जैसे बन हाँ जाए। जी, उन जैसे बन फिर जाए। बजट अच्छा हो जाएगा। वो फिर कम से कम ये रोना पिटना नहीं होगा अच्छा, आवाम के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे बताएं भाईजान, बजट आ रहा, बजट क्या चीज बात ज़हन में आती है बजट का नाम सुन के? बजट के हवाले से जो मैं आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जो जाए। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से तो बजट ये है, कामयाब ही नहीं होगा, पास ही नहीं होना। क्यों, वजह? क्यों, जितनी महंगाई कर रहे हैं ना, अच्छा, तो वो पास नहीं होगा इनके हिसाब से, क्योंकि इनके पास बजट है नहीं, बनाएंगे कैसे? वो तैयारी तो कर ली है, बजट पेश होना है क्या अगले तैयारी हफ्ते। कर ली है? कोई तैयारी नहीं इनकी। जब से आए आवाम रो रही है, महंगाई महंगाई करी जा रहे हैं, इसके अलावा इनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। झाड़ू मार के पैसा इकट्ठा करी जो, बस कर्जा उतार रहे हैं। इतने कर्जे ले ही जा रहे हैं, देने की बजाय ले रहे हैं। चलो वो भी दे रहे, नवाशी थे, कोई ना कोई खड्डा कहीं ना कहीं निकाल रहे थे, हमें पता था कि यार ये काम कर रहे हैं, हमारा पैसा इस जगह पे लग रहा है, हमें खुशी होती थी देख के। तो ये लोग तो ना कोई काम कर रहे हैं, ना कोई नजर आ रहा है हमें इनका काम। अब हुकूमत दावा कर रही है कि बजट में आम आदमी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, फायदा होने जा रहा है। चलो ये यू टर्न देख रहे हैं हम, हर दफा लफ्ज जो भी इस्तेमाल करते हैं दूसरे दिन उसका यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेते हैं। यू टर्न के नाम से इसीलिए मशहूर हो गए। चले, आपने बड़ी तनकीद की, हमने सुन भी ली। मुझे ये बताएं कि जब बजट का नाम जहन में आता है कि बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, तो जहन में क्या सवालात आते हैं कि बजट से आम आदमी को कितना फायदा होना चाहिए, क्या क्या होना क्या चाहिए? कुछ भी नहीं होगा। चले, वो तो कुछ नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए? घी की पेटी नवाज शरीफ के दौर में मैं 1300 की लेता था, ठीक है, आज वो मैंने 3020 रुपए की ली है। तो ये बताओ क्या होगा? मेरी एक छोटी सी शॉप है, उसके ऊपर मैंने 4 मुलाजिम निकाल दिए हैं, ठीक है, वो बेरोजगार हो गए। हमारा अपना सर्कल नहीं चल रहा, जो किचन का 500-600 से किचन चल रहा था हमारा, वो 2000-2500 पे चला गया। तो कैसे हम दुकान का निजाम कैसे आप चलाएंगे? घर का बजट मुझे बना के दिखा दें, कितने कमाते हैं, घर का बजट कैसे बनता है? और नहीं, बजट के आपको जब समझ आती है, हम अपनी अमाउंट के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा। हमें पता कि इनकम है तो हम थोड़ा बहुत तो ज्यादा इजाफा कर लेते हैं उसमें, अगर कम है तो उस हिसाब से हम अपने हाथ को अब खींच होना क्या चाहिए? आम जो चीजें हैं, दाल रोटी आटा सस्ता होना चाहिए। जाहिर है गरीब आदमी को तो यही चाहिए, दाल आटा चीनी नमक मिर्च मसाले वगैरह, वही चीज़ें हज़ारों पे चली गई हैं। अब नवाशी दौर में मैं 2800 रुपये किलो छोटी इलायची लेता था, अब 11,000 रुपये की किलो है वो, 10,000 से लेके 11,000 तक है। हुकूमत से मुतालबा क्या करते हैं, बता दें। हमारी रिक्वेस्ट है, मुतालबा कोई नहीं, कि खुदा के लिए अल्लाह रसूल के लिए हमारी जान छोड़ दे, ये चला जाए बस। इसके जाने से महंगाई कम हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से काम होगी, कोई अच्छा इंसान आएगा, चलें, अच्छी हुकूमत करने वाला आपकी बात की जो है हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी अपनी राय है, क्योंकि हर एक शख्स की जो है यहाँ पे अपनी राय है, जो भी राय देना चाहे वो दे सकता है। प्रोग्राम आपकी बात का मकसद भी ये है कि आपकी जो राय है वो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भैया? बजट आ रहा पता आपको? बजट आ रहा, ये इसने महंगाई करनी, बजट कहाँ देना है इसने? अच्छा। जब भी ये कहता झूठ ही बोलता है ये कौन? ये हमारे हुक्मरान और कौन। अच्छा, क्या कहते हैं ये? जब भी ये बजट का नाम आता है, इसके बजाय ये महंगाई कम करने को और ज्यादा कर देते हैं। हुकूमत तो कह रही है कि आपको बड़ा फायदा होने जा रहा है इस बजट में, आवाम खुश हो जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, ये उल्टा करते हैं। अच्छा, बजट पेश ना करें यहाँ?
बजट तो पेश होना ही है, वो तो नहीं रुकेगा। हाँ, हर साल पेश होता है। हाँ जी, तो आप मशवरा दे देना क्या क्या होना चाहिए, हो सकता है आपकी बात सुन ली जाए। हमारा तो यही है, हमारा ये खाने पीने की चीजें जो है वो नाम लेके बता दे जरा चीजों की क्या क्या। आटा, घी, चीनी, ये तो मिलती नहीं ना। घी पहले यूटिलिटी स्टोर से मिलता था, वहाँ पे भी उसने गायब कर दिया, वहाँ पे भी नहीं मिलता अब आप चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो। हाँ जी। हुकूमत भी यही कह रही है कि इस बजट में महंगाई कम होगी, फिर आप खुश होंगे। हाँ जी, कोई पैगाम देना चाहेंगे वज़ीर आला साहब को? यही है हमारा, जो यही है, महंगाई ये कम करें। महंगाई कम होनी चाहिए। कारोबार नहीं है, कारोबार भी इसने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अच्छा, हाँ जी, चले हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन आवाम की राय जानी, आवाम ये कहना चाह रही है कि कारोबार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई में कमी नहीं आ रही। तो बजट आ रहा है और बजट के हवाले से आवाम का यही मुतालबा सामने आ रहा है कि इस बजट में महंगाई कम होनी चाहिए, आम आदमी को फायदा होना चाहिए। लेकिन ये जब बजट आएगा तभी पता चलेगा कि हकाइक क्या सामने आते हैं, महंगाई कम होती है या फिर पहले से ज्यादा बढ़ती है या फिर बरकरार रहती है। या वक्त तो छोटी सी ब्रेक का बाद वापस आएंगे और ताजर रहनुमाओं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में ताजर बरादरी को क्या फर्क पड़ने जा रहा है। आइए मेरे साथ चलिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है बजट सेशन के ऊपर। आइंदा माली साल 2021-22 का जो बजट पंजाब में पेश होने जा रहा है और बल्कि पूरे मुल्क में जो पेश होने जा रहा है, इसके लिए हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है उनकी नज़रें बजट के ऊपर है कि बजट आएगा, आवाम को क्या रिलीफ देगा, ताजरों को क्या रिलीफ मिलेगा, आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा। इसके ऊपर जो हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं ताजर रहनुमा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नईम मीर साहब मौजूद है। नईम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नईम साहब माशाल्लाह जब भी बजट आता है आप रूटीन में भी एक्टिव होती हैं, लेकिन बजट के दिनों में आपको बड़ा टीवी स्क्रीन पे देखने को मिलता है, क्योंकि आप बजट की तमाम मामला बड़े दिल से देखते हैं, बड़ी गहराई से देखते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी आपका ताल्लुक रहता है वक्तन फ़क्तन। बजट के सिलसिले में आजकल भी आपकी कोई मुलाकातें हो रही हैं, ज़रा बताएं क्या सूरत हाल चल रही है? देखें जी, हुकूमत ने ये दावा किया है कि मईशत ठीक हो गई है और वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान बदल रहा है, मईशत जो है वो अपना हार्डशिप से निकल गई है। ठीक है। और अब जो है वो दौर आ गया है जो खुशहाली का है। तो अगर ये खुशहाली का दौर वाकई आ गया है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस खुशहाली में हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। और ख़ास तौर पे वो ताजर जो छोटे ताजर हैं जो कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर महरूम हुए अपने सरमाए से, अपने कारोबार से, अपने रोज़गार से, तो आज अगर रियासत इस पोजीशन में आ गई है कि वो मईशत की बहाली और उसकी तरक्की के दावे कर रही है, तो हम समझते हैं कि हम हक बजानिब है कि हम मुतालबा करें कि हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। तो अगर इस बजट के अंदर हमारा ड्यू शेयर हमें दिया जाएगा तो हम समझेंगे कि हाँ वाकई इनके दावे सच्चे थे। और अगर हमारा शेयर हमें ना दिया गया बल्कि हम पर मजीद और बोझ डाले गए तो फिर बात वाज़ेह है कि ये झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे और ये धोखेबाजी कर रहे थे। इससे पहले भी हुकूमत ने बजट पेश किए हैं, उससे आप मुतमिन थे? गुज़श्ता बजट नहीं, इससे पहले जो बजट पेश किए गए हैं वो तो बिल्कुल वो रवायती किस्म के बजट थे और जिसमें हुकूमत पहले ही ये हमें बावर करा चुकी थी कि अभी किसी किस्म की कोई रिलीफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है, मईशत बहरानों का शिकार है। जबकि मईशत जो है इन्हें बहरानों का शिकार मिली नहीं थी, वो खुद इनके अपने करतूत थे जिनकी बना पर मईशत बहरानों का शिकार हुई। और इन्हीं के वो काले करतूत थे जिससे पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के ताजर और पाकिस्तान की मईशत डूबी। और अब अगर इन्होंने अपने करतूत ठीक कर लिए हैं और अपने अमाल दुरुस्त कर लिए हैं और अपनी सिमत दुरुस्त कर ली है तो देखें फिर क्या बहाली होती है मईशत। क्या आप समझते हैं वजीर खजाना बार बार बदलने से बजट बेहतर आता? नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में हुकूमत की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ क्या हैं और हुकूमत जो है वो फौरी कौन से इकदाम उठा रही है जिसके नतीजे में मईशत बहाल हो, ये इम्पॉर्टेंट है। और हुकूमत का जो ओवरऑल विजन है
معیشت کے بارے میں یہ امپورٹنٹ ہے، اور حکومت کا ماسٹر پلان اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھا، اور معیشت کو اچھی طریقے سے سٹڈی کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا اقتدار میں آنے سے پہلے، یہ اہم ہے۔ جب آپ نے معیشت کو اقتدار میں آنے سے پہلے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور آپ کو ایک دم اقتدار مل گیا اور آپ یہ کہنے لگے کہ ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں، تو یہ سیکھنے کی قیمت جو ہے یہ پاکستان کے عوام نے ادا کی ہے، جی ڈی پی گروتھ کے -0.4% تک لے جانے میں، 3.2 ملین افراد کے روزگار گنوانے میں، اور جی ڈی پی کا تقریباً $60 ارب جو ہے وہ اس میں تخفیف ہوئی، جس کے نتیجے میں اربوں روپیہ جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں ڈبانے سے۔ اچھا، آپ نے کہا ابھی حکومت کہہ رہی ہے سیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی بڑی دفعہ سیکھ کس سے رہے ہیں؟ آپ سے مشورے لیتے ہیں؟ اب بجٹ جو آنا ہے، جب بجٹ آنا اس سے پہلے کوئی تاجروں سے ملاقاتیں ہوئی، حکومتی عہدیداروں کی مشاورت ہوئی کہ کیا بہتر ہوگا؟ آپ تو کاروباری شخصیات ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو حکمران ہے نا جی، یہ حکمران کم ہے اور عوام کے نمائندے کم ہیں اور پروفیسر زیادہ ہیں۔ اچھا جی، یہ ہمیں جو ہے نا جی یہ لیکچر بہت دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب تو جو ہے نا ان کو میرا خیال ہے نمل یونیورسٹی کے یہ کچھ چانسلر بھی ہیں، تو انہیں کو پنجاب یونیورسٹی کا چانسلر بنا دیتے، یہ لگے رہتے ہمیں لیکچر دینے، بتاتے رہتے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ کبھی یہ معیشت کو جو ہے نا وہ کٹے اور بچے پالنے سے، ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ نہیں، وزیر اعظم جو ہے نا جی وہ پروفیسر ہو گیا ہے۔ پروفیسر ایک دیکھیں نا کوئی اچھی چیز ہی ہے، پروفیسر کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے، تو کٹے کبھی بچے، کبھی انڈے، کبھی مرغیاں، کبھی یہ، مطلب ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں جی کیا ہوتا ہے، اس معیشت کا برا حال ہے، اور ہمیں تو اس بجٹ سے کوئی ایسی توقعات نہیں ہیں جس پر ہم جو ہے وہ بھنگڑے ڈالیں، خوشیاں منائیں یا شادیانے بجائیں یا ڈھول پیٹیں۔ ابھی بجٹ آیا نہیں، پہلی مایوسی آ گئی۔ دیکھیں مایوسی اس لیے ہے، دیکھیں 5,800 ارب روپوں کا جو انہوں نے جو ہے نا وہ ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ اس وقت انہوں نے 4,000 ارب روپیہ ان سے نہیں اکٹھا ہوا اس سال۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ 1,800 ارب روپیہ اکٹھا کریں گے، مزید اس کا ٹارگٹ رکھیں گے، تو لامحالہ نئے ٹیکسز لگیں گے۔ جب نئے ٹیکسز لگیں گے تو آج مہنگائی کی شرح 13% کی ایک ہوشربا فگر کو چھو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہنگائی جو ہے وہ 17-18% تک چلی جائے گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو اشیاء ضروریہ اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ایک ڈیکڈ سے، یعنی آخری جو اشرہ گزرا ہے، اس ایک اشرے کے اندر مہنگائی اپنے ٹاپ سطح پر آ گئی ہے صرف کھانے پینے کی اشیاء میں۔ اگر ایک بندہ جو ہے اگر اس کی فیکس آمدنی جو ہے پاکستان کے اندر نہیں بڑھ رہی، فیکس آمدنی میں جو ہے وہ تقریباً 20% کی گراوٹ آئی ہے، اور خط غربت سے جو نیچے لوگ ہیں ان کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے، تو ایک طرف مہنگائی اس طرح بڑھی، فیکس آمدنی نیچے آئی، تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ جو ہیں جن کے پاس جو رقم ہے، پیسہ ہے، جسے ہم صارفین کہتے ہیں، میں اور آپ ہم سب صارفین ہیں، ہمارا سب سے پہلا جو ہے وہ ہماری ترجیح وہ یہ ہوگی کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء اور اپنی فوڈ سیکیورٹی کو پلان کرتے ہیں۔ لیکن حکومت جو اعداد و شمار بتاتی ہے اس سے تو معیشت بہتر ہو رہی ہے، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، مہنگائی آنے والے سال میں کہہ رہے ہیں کمی آ رہی ہے، تو یہ باتیں پھر عوام تو پھر نہیں مانیں گے۔ دیکھیں جی، حکومت کی جتنی بھی خوشخبری ہیں نا وہ مائکرو لیول پر نہیں ہو رہی، وہ میکرو لیول پر کہیں ہو رہی ہیں، اور میکرو لیول پر جہاں کہیں بہتری آ رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اشرافیہ ہی ہے، جہاں دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے، جہاں اس ملک کی دولت جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے اسی اشرافیہ کے پاس، جنہیں ہم اب آج کل کی زبان میں عمران خان صاحب مافیاز بھی کہتے ہیں، جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، انہی کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے، اور کبھی کان کو اس ہاتھ سے پکڑ لیں یا کان کو اس طرف سے گھما کے پکڑ لیں۔ پکڑنا تو آپ نے کان کو ہے، یعنی فائدہ آپ نے اشرافیہ کو پہنچانا ہے، اور غریب آدمی کو آپ نے مارنا ہے۔ پنجاب حکومت بجٹ کی تیاری کر رہی تھی، کیا انہوں نے تاجر رہنماؤں کو بلایا، کوئی مشورہ کیا، کوئی آپ کی کسی ڈیلیگیشن کو بلایا، کسی قسم کی انپٹ لی گئی آپ سے؟ نہیں، ہم سے کیا، کسی سے بھی نہیں لی گئی، کسی سے نہیں لی گئی، کیونکہ یہ بجٹ جو بنانا ہے انہوں نے جن لوگوں کے مرہون منت یہ بجٹ بننا ہے وہ تو باہر بیٹھے ہیں، یہ محفل ہے نا جی، تو انہوں نے مشورے تو ان سے لینے ہیں، ہم سے تھوڑی لینے ہیں، اور بلکہ ان سے مشورے نہیں، آئی ایم ایف بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے جی، چھوڑیں نہ عوام نہ ہم، آئی ایم ایف، کیونکہ اس نے پیسہ دینا ہے آپ کو، جب اس نے پیسہ دینا ہے آپ کو تو ان سے آپ نے مشورے بھی نہیں لینے، ان کی ہدایات پر عمل ماننی پڑیں گی، تو یہ انہی کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ بجٹ کی تشکیل ہوتی ہے، باوجود اس کے
کہ ہم نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ جی ہمیں آپ اپنے مشاورتی عمل میں شامل کریں، اور باوجود اس کے کوئی ملاقات نہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ عثمان بزدار سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو ان سے تو وہ تو ملاقات کے قابل ہی نہیں ہے. نہیں آپ سے ملاقات نہیں نہیں جی میں نے بتا دیا وہ ملاقات کے قابل ہی نہیں ہے. تو آپ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ آپ کے وزیر وزیر اعلیٰ ہیں جی، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے جی وہ آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں. ہمارے نہیں ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ. اچھا تو ان سے پوچھ لیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے، میرا خیال ہے ان کو کوئی نہیں پتا. کیسی بات آپ پوچھیں تو صحیح ان سے جا کے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ان سے پوچھیں اگر وہ پنجاب کے واقعتاً وزیر اعلیٰ ہوتے آپ کیوں نہیں مانتے تو آج یہ پنجاب جو ان کو ہرا بھرا اور بنا سنورا پنجاب ملا تھا، اور معمار پنجاب میاں شہباز شریف نے جس طرح اس پنجاب کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا پورا کردار ادا کیا، اور خدمت کی سیاست اور بہترین گورننس کے جو اعلیٰ معیار انہوں نے قائم کیے، کیا کسی ایک معیار پر بھی وہ پورے اترتے؟ آپ عثمان بزدار صاحب کی کیا بات کرتے ہیں، چھوڑیں. انہیں تو یہ نہیں پتا پنجاب کی آبادی کتنی ہے، انہیں تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پنجاب میں ضلع کتنے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں عثمان بزدار. یہ عثمان بزدار کو بننا ہے. وہ اس کو اگر پتا ہوتا کہ اس شہر میں اس صوبے میں کون لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تو کیا وہ ان 3 سالوں میں ہم سے کو ملاقات تو کم سے کم کرتا، ہمیں پوچھتا تو صحیح. اس نے ہمیں پوچھا ہی نہیں. وہ اپنی دیہڑیاں لگا رہے ہیں. ان کے سارے رشتہ دار جنوبی پنجاب میں جو مخصوص اضلاع ہیں جہاں پر ان کو جو ہے وہ پورا اختیار دیا گیا ہے، ڈی جی خان ڈویژن اور اس کے گرد و نواح، وہاں پر ان کے سارے رشتہ دار جو ہیں وہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں اور کوئی اور کام نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ میں عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کیا کہوں. لیکن مجھے یاد ہے جب مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت آتی تھی بجٹ پہ، تب بھی آپ احتجاج کرتے تھے. یار دیکھیں تاجروں کے اس سال میں خوش ہیں؟ نہیں دیکھیں، نہ گزشتہ حکومت کے بجٹ پہ آپ خوش ہیں نہ اس پہ خوش ہیں. نہیں جب بھی کہیں تاجروں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو، اور تاجروں کی مشاورت بجٹ سازی ہو یا اہم فیصلہ سازی ہو، اس میں شامل نہیں کی جائے گی، اور تاجروں کو اہمیت نہیں دی جائے گی. جس جگہ پر، جس مقام پر، جس حکومت میں، جس دور میں، وہ پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اور یہی حق نمائندگی ہے تاجروں کا جو ہم نے کرنا ہے. اچھا ابھی گزشتہ دنوں آپ کی حمزہ شہباز سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کیا مشورے دیے ہیں آپ نے؟ کیونکہ وہ تو بجٹ سپیچ میں اپوزیشن سے وہ پہل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھرپور مسلم لیگ نون جو ہے اپوزیشن میں احتجاج کرے گی جس دن بجٹ پیش کیا جائے گا. تو آپ نے بھی کوئی مشورے دیے ہیں؟ کیا بات چیت ہوئی کو بتائیں. کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ تاجر طبقہ اتنا مایوس ہو گیا ان حکمرانوں سے، اس حکومت سے، کہ وہ اپوزیشن کے پاس چلا گیا کہ ہماری فلور پر آپ آواز اٹھائیں. انہیں حکمرانوں کے پاس جانا چاہیے. انہیں تو حکمرانوں کے پاس جانا چاہیے نا. دیکھیں نا یہ سوچنے والی بات ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حکمران اندھے، بہرے اور گنگے ہو چکے ہیں، اور یہ حکمران جو ہیں یہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے. یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن نے جس طرح کہہ دیا ہمیں کہ جی اندھے، بہرے، گنگے لوگ ہیں، یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. تو بالکل اسی کے مصداق سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں اسی کے مصداق، میں مصداق بات کر رہا ہوں اسی کے، کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے ایک دم یہ قرآن پڑھنے سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی حکمرانوں کے بارے میں کہتا ہے جنہیں اپنے عوام کی کوئی فکر نہ ہو، جنہیں اپنے تاجروں کی فکر نہ ہو، جنہیں معیشت کی فکر نہ ہو، جو کسی اپنا سانحے کا، دیکھیں بھی ٹرین حادثہ ہوا ہے، کسی سانحے کی، کسی اپنا ایسے معاملے پر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہو، جو عوام کے زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، جو عوام کی داد رسی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جن کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہو، جو کہ ابھی تک ہمیں 3 سالوں میں نہیں سمجھ آ رہا وہ کن کے لیے حکومت میں آئے ہیں، کن کو وہ نواز رہے ہیں اور کن کے کہنے پر کیا کام کر رہے ہیں. جہاں عوام کا کوئی جو مشاورتی عمل ہے وہ اس کا، ان کے فیصلہ سازی میں اس کا حصہ نہ ہو، تو ایسے حکمران تو اندھے، بہرے، گونگے ہیں، تو یہ نہیں ہدایت پا سکتے. چلیں آپ کی تنقید سن لی، لیکن ابھی اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے بجٹ میں؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز سے، کیا مشاورت ہوئی، کیا لائق ہوئی، ہمیں بھی بتائیں نا. دیکھیں ہم نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو بتایا ہے کہ جی پنجاب حکومت سے ہمارے یہ مطالبات ہیں اور مرکز سے یہ مطالبات ہیں. جو مطالبات پنجاب حکومت کو بتائیں نا، آپ حمزہ شہباز کو بتانے چلے گئے. آپ کو چاہیے تھا مرکز رابطہ کریں، آپ سی ایم ہاؤس رابطہ کریں، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں. آپ ہمارا رابطہ کروا دیں، آپ بہت بڑے صحافی ہیں. ہم تو تھک گئے ہیں اپنا چٹھیاں ڈال کے، پتر بھیج کے، میسج دے کے، اور فون کر کے.
वहां से तो ना कोई कबूतर आया ना कुछ और आया, वहां से जब भी हमें मिला लारा ही मिला। अब बुनियादी बात पे आ जाते हैं, बजट पे ताजरों के बुनियादी मुतालबात क्या हैं, जरा वन बाय वन गिनवा दें हमें। देखो जी, आप पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं या वफाक के बारे जी में? जी, पंजाब के बारे में। जी, पंजाब के बारे में जी हम समझते हैं कि देखें, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इनिशिएटिव ले कि पंजाब के ताजरों को फौरी तौर पर बिला सबूत शख्सी जमानत पर एक कर्जा स्कीम जारी की जाए। क्यों? 150 अरब रुपया हमारी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पंजाब के ताजरों से टैक्स इकट्ठा कर रही है। ठीक है। अगर इतना टैक्स इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टैक्स की फिलॉसफी क्या है इकट्ठा करने की, कि अमीर लोगों से इकट्ठा किया जाता है और महरूम और गरीब लोगों पर खर्च किया जाता चले, है। पहला आपका मुतालबा आ गया कि फौरी जो है कर्जा दिया जाए। कर्जा दिया ठीक जाए। है। दूसरा नंबर दो। मुतालबा हमारा ये है कि जितनी भी सरकारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनके किराए जो हैं वो माफ कर दिए जाएं, कम से कम 2 माह 3 माह के किराए जो है ना जी माफ कर दिए बिल्कुल जाएं ठीक। ताकि ताजर को रिलीफ मिले बराह रास्त। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो आप प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं उसका वेवर एक दफा दें कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, क्योंकि जब आप कमर्शियल बिल्डिंग ऑनर को वेवर देंगे तो वो उसके असरात उसके मुंतकिल होंगे उस किराएदार पर जो खुद पिसा हुआ है, तो ये एक इनडायरेक्ट सपोर्ट किराएदार को मिल जाएगी। तो ये हम अपनी जेब में कोई पैसा नहीं मांग रहे डालने के लिए भाई, हम तो कह रहे हैं कि एक सिस्टम के तहत आप जो है वो नीचे तक इसके असरात पहुंचाएं। और अगर एक बुनियादी बात और भी है, देखें बात यह है कि जी कमर्शियल बिजली का जो यूनिट है वो इस वक्त सबसे महंगा तरीन यूनिट है जो ताजर खरीदता है। इस पर जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो हमें सब्सिडी दे और मरकज से बात के अंदर दी थी बिलों में। नहीं, वो तो बिलों की आपने दी थी, 3 माह के बिलों का रिलीफ दिया था। हम कह रहे हैं कि इसमें हमेशा के लिए 1 साल के लिए आप जो है वो कम से कम हमेशा के लिए तो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो वफाक कर सकता है। लेकिन अगर 1 साल के लिए पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ये कहे कि जितने कमर्शियल यूनिट्स इस्तेमाल होंगे उसमें आधा बिल जो है वो हम देंगे और आधा जो है वो हमारा सारिफ दे, जो कमर्शियल सारिफ है यानी वो छोटा दुकानदार और ताजर है। और ये सिंगल फेज मीटर के लिए हम कह रहे हैं, 3 फेज के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि 3 फेज मीटर वहां लगा होता है जहाँ दुकानदार और ताजर थोड़ा सा खुशहाल होता है। तो अगर इस तरह के कोई आप पैकेज लेकर आए तो जो ताजर है आपका ताजर तबका वो खुशहाल हो जाएगा। नहीं, वो खुशहाल होगा, खुश नहीं होगा। खुशहाली का असर क्या होगा? देखिए, वो जो 32 लाख लोग जो नौकरियों से निकाले गए हैं वो हमारे इदारों से निकाले। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ताजर रहनुमा नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना, इन्होंने जो है बुनियादी 2-4 मुतालबे किए हैं कि फौरी तौर पे जो है ताजरों को कर्जा दिया जाए, बिलों के मीटर के ऊपर जो यूनिट का रेट है उसके ऊपर बात हुई है कि साल तक अगर जो है इनको रिलीफ मिलेगा तो यकीनन जो है इसमें बेहतरी आएगी। 85 का वासा का निज़ाम चल रहा है, तो इसको अपग्रेड किया जाए। उन्होंने कहा जरा तुहानू कह रहे हैं करो, ए लोग वेखणगे, सानू पता लगेगा तो वोट सानू मिलेंगे। वासा रहने दो। तो वासा का मास्टर प्लान उन्होंने नहीं बनाया। ठीक है। अब हम उस पे ऊपर काम कर रहे हैं और वो 20 साल का बनना चाहिए था। मैं जिस एरिया से रहता हूँ शाहदरा में, उसका मास्टर प्लान 85 का बना हुआ है। 81 से शुरू हुआ, 85 में जाकर डिस्पोजल लगा है। जिसका तल्लक चला, आपका तल्लक है जी, आप मीडिया में MNA को कह दिया, MPA को कह दिया, उसने 2 पाइप डलवा दिए, 2 गलियाँ बनवा दी, आपकी ठीक होगी, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। सो इन्होंने ये काम नहीं किए, ये काम करने चाहिए थे। जो आपने बात की है यकीनी तौर पे ADP पे इस दफ़ा मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि पिछली दफ़ा कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स हमें आए, इस दफ़ा गालिबन 40% ADP जो है जो डेवलपमेंट की स्कीम है 40% वो ज़्यादा की जा रही हैं और शायद 500 अरब के करीब ADP का ओवरऑल बजट जो है वो चला जाए, और जिसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट की स्कीम्स भी हैं। और ख़ास तौर पे लाहौर को बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, आपका चैनल भी इस हद तक काफ़ी इसने काम किया कि लाहौर में काम नहीं हुए, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि लाहौर के अंदर तकरीबन 62 अरब का ऑलमोस्ट है एग्जैक्ट। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये मैं टेंटेटिव फिगर्स दे रहा हूँ। सर UCM विजिट करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, बुरे हालात हैं, गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार है। सर कोई गली नहीं बनी 3 सालों में। बताने लगा ना, बजट के बाद होगा ना। बजट में तकरीबन 62 अरब का जो ADP है वो लाहौर के लिए मुख्तसर, लाहौर की डेवलपमेंट हो रही है, लाहौर के लिए की जा रही है। ये जो मुख्तलिफ गलियां सड़कें छोटी महल्ले ठीक हो रहे हैं, काफी सारा उसमें कंफर्म बात है इंशाल्लाह काफी। अच्छा, एक शादरा फ्लाईओवर का भी मसला बना हुआ है, इस बजट में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे या आवाम को गोली है? अच्छा कि आपने वो पूछ लिया, वो प्रोजेक्ट है वफाक का। अच्छा, पंजाब का ताल्लुक नहीं है उसके साथ? उसमें हमने एक
साइड पे एक प्रपोजल भी तैयार की हुई है एलडीए की जानिब से, अल्टरनेटिव भी है कि, लेकिन हमारी असल कोशिश ये है कि वो वफाक करे, क्योंकि वफाक में एक आपने देखा होगा वहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इशू है, शाहजरा मोड़ पे और पीछे इमामिया कॉलोनी पे। अगर वफाक करता है, इमामिया कॉलोनी चली जाती है शेखुपुरा के हल्के में, तो अगर वफाक करता है तो वो दोनों को कैटर कर लेगा, और अगर एलडीए से करवाएं तो फिर शाहजरा मोड़ होगा। तो हम कोशिश करें कि वफाक से करें। अच्छा, मैं एक बता दूं, उसमें वफाक में 2 टेंडर होते हैं, आपको पता है, सरकारी तरीकाकार होते हैं। पहला टेंडर उसमें हो चुका हुआ है, जिस टेंडर के अंदर डिजाइनर फाइनल होना था, कंसल्टेंट फाइनल होना था, फाइनाइट इंजीनियरिंग उसका नाम है। उन्होंने जुलाई तक का कहा है पहले टेंडर के अंदर कि जुलाई के एंड तक वो डिज़ाइन देंगे, और जो वर्क पूरा ऑर्डर है वो मेरा ख्याल है दिसंबर में होगा, और फिर वो फाइनेंस क्लोज, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम अलहदा से करेंगे। लेकिन अब अहम बात यह है कि बजट जब स्पीच होगी, बजट पेश किया जाएगा, तो हमें इतलात ये मिल रही है कि ओपोजिशन की जानिब से, यानी हमजा शहबाज ने बड़े तगड़े नकात जो है तैयार कर लिए हैं आप लोगों को पंजाब असम्बली में रगड़ा देना। उन्होंने, आप माने ना माने, उन्होंने कहा जी किसान पॉलिसी नाकाम होगी, इनका डेवलपमेंट का बजट जो लगना था नहीं लगा, मुख्तलिफ नकात की तैयारी हो चुकी है। हमजा शहबाज ओपोजिशन जो है इस वक्त मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं असम्बली में। आप लोगों के पास प्लान है? बहुत अच्छी बात है, हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर बात होनी चाहिए। अपोजिशन का असल काम ही ये होता है कि वो इश्यूज़ को, कमियों को, कोताहियों को हाईलाइट करे। हम उनको वेलकम करते हैं, आए बताएं। लेकिन अगर वो सिर्फ नई मीर साहब के मशवरों पे आके बात करेंगे तो फिर वो वहीं पे पड़ जाएंगे। मीर का क्या ताल्लुक है उनके साथ? आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपने भी बात कर रहे थे तो वो तो उनकी बीट। अभी हमारी उनसे बात हुई है ना, उन्होंने कहा जी पीटीआई हुकूमत ने कोई बजट हमें कोई कभी काम का दिए नहीं। मैं कभी तो दिया होगा। नहीं, मीर साहब का तो एक अपना इशू है, किसी ना किसी बहाने पे ताजरों को खुश कर दें, आप क्यों नहीं करते? मीडिया पे आने का इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें इस दफा हैं। हमने एफबीआर के जरिए भी, और जो टैक्स रिटर्न्स होनी है, बहुत सारी चीजें बजट से तो हाल नहीं थे ना। वो मीर साहब बजट से पहले ही डोल बजा के कहते हैं मैं टीवी पे नजर आ जाऊं, जुबैर साजिद ढिल्लों मुझे कैमरे पे ले ले और मैं ऊंचा ऊंचा बोलूं और लोगों को नजर आऊं। और गुज़श्ता हुकूमतों में भी शोर करते रहे हैं वो, उनके वो और मामला थे, आपको पता, हमारे दोस्त है, नहीं मीर बेचारा हमारा दोस्त है, उनके उधर भी और मामला थे, हमारी पार्टी में भी और मामला थे। पहले बात हो गई, अगर होते तो फिर मजा आना था। नहीं, मैंने 1-2 प्रोग्राम में, आपके चैनल पे एक प्रोग्राम है नजम वली साहब के प्रोग्राम में बैठ के हमारी इकट्ठी बात हुई है, हमारे दोस्त हैं वो। लेकिन मैं मशवरा दूंगा हमजा को कि वो नजम उसके नहीं मीर के सर मशवरों में काम ना करें, लेकिन अच्छी बात। चले एक चीज मुझे बता दें, बुनियादी चीज बता दें। बिल्कुल ठीक है, बुनियादी चीज, आम आदमी को रोटी सस्ती मिलेगी नहीं मिलेगी, उसे साफ पानी चाहिए, उसके मोहल्ले में गंदी सड़कें हैं, आम आदमी खुश नहीं है। महंगाई पे कब कंट्रोल होगा? इस बजट के बाद महंगाई में कमी होगी नहीं होगी? चीनी, आटा, दालें निकल गई हैं आपसे। 2 चीजें हैं इस पर तो सारे लोग, प्राइम मिनिस्टर सब खुद भी कह रहे हैं कि महंगाई हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। सर वो तो कह रहे हैं, लेकिन उसको ठीक किसने करना है? ठीक कैसे होना? आप भी मेरे, अगर आपके जिम्मे एक चीज आ जाए, मैं आपको बताऊं कि आप कैसे करेंगे, उसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये पूरे का पूरा एक साइकिल है, जब आप पूरा साइकिल एक बेहतर करेंगे, इकोनॉमिक साइकिल है। सबसे पहले जब आप पेशेंट आता है तो आपने उसकी जो क्रिटिकल चीजें उनको देखना होती है। क्रिटिकल चीजें आप ठीक करते चले जाएंगे, बाकी चीजें खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगी। फंड्स और पैसे अगर आपके पास हों तो आप सारे काम कर सकते हैं। हमें फंड्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये जो आपने आपको चैंपियन कहते हैं ना, तो ये जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 98 अरब के चेक जारी कर दिए थे, 98 अरब के। वो अभी जो ड्यूएबल से, या वो बात की बात कर रहा हूँ, 98 अरब के चेक जारी कर गए थे। जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पैसे नहीं मिले। चलिए गिलानी साहब, लास्ट पे बड़ी जरूरी बात जो रह गई है वो ये है, हमने करनी है। हमें 3 साल हो गए हैं यही सुनते हैं, कौम को सब्र करना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देख रहा था, आपके हेल्थ कार्ड के साथ किसी ने मजाक किया था, सब्र कार्ड लिखा हुआ था, तो मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आई थी। खान साहब हमें समझा रहे हैं घबराना नहीं है, महंगाई पे कंट्रोल, वो भी मान रहे हैं महंगाई है, हम भी मान रहे हैं। अब मसला है कि इस बजट के बाद खुशखबरी क्या आम आदमी को दे रहे हैं, ये आप मुझे 2-3 खुशखबरियां बता दें, लाके लोगों को हौसला हो जाए। डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के अंदर इस दफ़ा इस बजट में इरिगेशन पे काम हो रहा है, आवाम के अंदर खुशहाली आएगी। इस एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है, आवाम के अंदर खुशहाली आएगी। सोशल वेलफेयर, बैतुल माल को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, उसमें आवाम के अंदर खुशहाली आएगी। हमारा एक था कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बजट बढ़ाए जा रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन के वो सर्विस है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, उसके अंदर लोग बेहतर आएंगे, हमारे लोग अच्छे होकर सामने आएंगे। वो फॉरेस्ट पे काम किया जा रहा है, वाटर सप्लाई बड़ा अहम है, सैनिटेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इस बजट में आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो पुलिस और बाकी चीज़ें इदारे हैं, क्योंकि गवर्नेंस आपकी यहाँ से सामने आती है, उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ऑनलाइन किया जा रहा है, उनके लिए गाड़ियाँ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनका बजट बढ़ाया जा रहा है, वो लोगों को सहूलत मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, वहाँ लोग रोटी दालें महंगाई के बारे में क्या हो रहा है?
یہ دیکھیں پہلی چیزیں تو یہ آپ نے یہ کری ہو ہے گئی نا، نا، یہ سر، ساری ہو چیزیں گئی۔ لوگوں کو جب ہاں۔ ملیں گی، سہولت آئے گی جی۔ تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ گورننس کے اوپر جاتے ہوئے جب آپ کے ملک کے اندر گندم زیادہ ہوگی، جب آپ کے ملک کے اندر چاول زیادہ ہوں گے، جب آپ کے فصلیں زیادہ اچھی ہوں گی، زیادہ فصلیں ہوں گی، قیمتیں کم آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب ہم وہ ہمارے اپنے ملک کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم گورنمنٹ خرچ کرنے جا رہی ہے۔ عام آدمی کو میسج دے دیں، کیمرے میں دے کے میسج دے انشاءاللہ دیں قیمتیں کہ کم ہوں دالیں گی۔ چینی نام لے کے بتائیں، انشاءاللہ عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے اس پروڈکٹس کا۔ ملک کی عزت بڑھ رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر ڈیم لگنے جا رہے ہیں 30 40 50 سالوں کے بعد، نہریں بننے جا رہی ہیں، اس سارے کے سارے کا فائدہ ہمارے ملک کے ہے۔ ہمارے ملک کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اچھی بن رہی ہے، سر، آٹا دال اور چینی اس کا کے نام بعد لے لیں، آٹا دال چینی۔ آٹا دال چینی پہ اوپر جب ہمارا زراعت ہے، زراعت پہ آپ خرچ کریں گے، آپ کی وافر چیزیں ہوں گی تو آپ کی قیمتیں یقیناً کم ہوں گی۔ بہت شکریہ جی۔ یاسر گیلانی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے آواز تنقید جو ہے وہ سنی ہے، ان کا حوصلہ ہے، اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے، تاجر برادری بھی کر رہی ہے، عام آدمی جو ہے وہ بھی سڑکوں پہ رو رہا ہے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے تحریک انصاف کا، اور گیلانی صاحب نے بھی کہا کہ آئندہ آنے والے بجٹ میں عوام کو، جیسے کہ پنجاب حکومت نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ بڑا ریلیف مل رہا ہے، لیکن یہ قبل از وقت کہنا ہوگا کہ ریلیف کتنا بڑا مل رہا ہے۔ جیسی بجٹ آئے گا چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی، ہم پھر دوبارہ ان سے ملاقات کریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو انہوں نے کہا کیا وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن ہماری دعا ہے ٹیم آپ کی آواز کی بھی کہ اللہ کرے بجٹ میں اچھی اچھی چیزیں آئیں، تاکہ ہماری لڑائی کی اپوزیشن سیاستدانوں سے نہیں ہے، صرف یہی جنگ ہے کہ عام آدمی کو دال روٹی چینی اور جو ضروریاتی اشیاء ہے وہ سستی ملنی چاہیے، مہنگائی کی کمر جو ہے وہ ٹوٹنی چاہیے اور عام آدمی کو بجٹ سے بڑا ریلیف ملنا چاہیے۔ اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھیلو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔